Okay, now in the module of abdomen, you have done by now anterior abdominal wall structure, in which we have seen the layers which are forming the anterior abdominal wall, the muscles of the anterior abdominal wall, rectus abdominis, rectus sheath, inguinal canal, spermatic cord, scrotum, and other things like. And after that, you went into the abdominal cavity, where you discussed the organs of the alimentary tract or the digestive system, esophagus, stomach, duodenum, then jejunum and ileum, cecum, appendix, ascending, transverse and descending colons, and then hepatobiliary system, in which we discussed liver, and then pancreas, gallbladder, and the ducts which are connecting all of them, and they are putting their secretions or their products into the second part of duodenum. These are the biliary ducts, you can call them. अब ये चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की. अब आप यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को लिनियल बा से अगर कट करके इसको ओपन करूँ, जैसे दरवाज़ा ओपन होता है, तो यू विल इंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. And you know that under the dome of the diaphragm, you see there are hidden structures. One is the liver, another is the spleen. Partially hidden under them will be the stomach. Esophagus is just half an inch, is totally hidden. And most of the stomach is also hidden, but some stomach will be visible across the abdominal cavity, you say in the epigastric region. And then your duodenum is actually pressed behind here, and it will be actually pressed against the posterior abdominal wall structures. वो प्रेस हो जाता है. उसका इनिशियल इंच तो नहीं, आखिरी इंच भी नहीं, बीच का बाकी हिस्सा जो है, अगर आप टोटल 10 इंचेस का अगर duodenum अगर हम काउंट कर लें, तो पहला और लास्ट इंच जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के करीब होगा, बाकी 8 इंच उसके प्रेस्ड होंगे अगेंस्ट पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. 8 इंच में माने फर्स्ट पार्ट का आखिरी इंच, सेकंड पार्ट पूरा, थर्ड पार्ट भी पूरा, और फोर्थ पार्ट जो आखिरी फोर्थ पार्ट है ही इंच का, वो तो आगे आ जाता है, क्योंकि आगे उसको जेजुनम और इलियम के साथ. तो बट जेजुनम एंड इलियम ऑल दे आर सस्पेंडेड हियर एंड दे आर फिलिंग नाउ द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि उनको आगे आना है, क्योंकि वो है 20-22 फीट का. एंड देन वी हैव गॉट अगेन प्रेस्ड बिहाइंड your posterior abdominal wall, your cecum, which is lying in the iliac fossa, which is sleeping on iliac fossa. Iliacus muscle उसका bed है एक तरह से, right iliac fossa. And then ascending colon, then transverse colon, and then descending colon. ये सारे sides इस तरीके से. तो बीच का हिस्सा जितना भी है ना, उसमें आपका small intestine है. अगर मैं इसका दरवाजा खोलूँ ना, तो आगे निकल के आगे गिरेंगे क्या? Small intestine के coils गिरेंगे आगे. Though they are suspended by means of mesentery, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे पड़े हुए हैं, खोलेंगे तो आगे ज़मीन पे आके गिरेंगे, ऐसे नहीं होगा, because they are held by double layer of mesentery. और उसके बाद हमने इन स्ट्रक्चर्स को देखा. अब हम क्या करते हैं, हम सारे स्ट्रक्चर्स को साफ कर देते हैं, ये निकाल देते हैं. समझ लो कि those structures which are pressed against the posterior abdominal wall, GIT के स्ट्रक्चर किसके अगेंस्ट? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो लेकिन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर पहले से ही मौजूद हैं ओरिजिनली प्राइमरीली ऑर्गन्स व्हिच आर पोस्टीरियर एब्डोमिनल ऑर्गन्स. वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऑर्गन्स में या उनके स्ट्रक्चर्स में जो सबसे पहली चीज सेंटर में जहां होगी, वो वर्टिब्रल कॉलम. कहां से? L1 2 3 4, क्योंकि हम डायफ्राम से नीचे की बात कर रहे हैं और हम पेल्विस में भी नहीं जाना चाहते, तो फिर सीधा बोलो कि हम कहां हैं, हम 5 नंबर वर्टिब्री पर हैं. तो you have okay now. So we told you that after having done the structures, or we say the organs or the viscera of the abdominal cavity, now you are focusing the posterior abdominal wall. If you want to actually see the structures of the posterior abdominal wall, that means if you are going through the anterior abdominal wall, opening up, it's just like a door,
by a very long incision along the linea alba, तो हम जैसे ऐसे दो दरवाजे की तरह खोलेंगे तो हम पाएंगे क्या, आप most of the central part of your abdominal cavity has been occupied by the small intestine, jejunum above and to the left, and more in the central portion it will be ileum, until you reach here to the below and to the right of your abdominal cavity it will be ileum. And then on the two sides and above it is actually decorated your colons, starting here from your cecum and appendix etc. और उसका बाद में आपको लिवर वगैरह इतना नजर नहीं आएगा, हालांकि वो एब्डोमेन में है, क्योंकि वो अंडर द डोम ऑफ डायफ्राम कवर्ड है, थोड़ा सा नजर आ जाएगा आपको। और स्टमक उससे ज्यादा हिडन है, वो थोड़ा सा स्टमक भी नजर आ जाएगा, वो चल के देखते हैं। लेकिन हम फोकस इस वक्त हमारा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ये जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनता है। वो हम आगे से अगर जाएंगे तो हमें कैसे नजर आएगा, तब आएगा जब हम सारी चीजें साफ करेंगे। तो ऑल द थिंग्स यू विल एक्चुअली हैव टू clean and get them eliminated from your abdominal cavity, और हम देखें साफ करके उसका posterior abdominal wall। और इस वक्त वहाँ posterior abdominal wall पे हमारी नज़र है, और देखें कि ये कैसा दिखता है। यहाँ पर ये है वो। अब से यहाँ कैसे पहुँचे होंगे हम लोग, हमने क्या किया होगा, एंटी एब्डोमिनल वॉल ओपन किया, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमने साफ की, और इस वक्त यहाँ पर ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर ये हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। कैसे, ये सेंटर में, हालांकि ये मसल्स हैं, बट इन द सेंटर इट विल बी 5 लंबर वर्टिब्री अंटिल यू रीच हियर टू द सेक्रम। ये वो देखिए 5th लंबर वर्टिब्रा हमें नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है हमें सेक्रम, L5 और सेक्रम के फर्स्ट पीस के बीच में ये जॉइंट है, और ये सेक्रम है। तो इसका मकसद है कि ये तो अंदर पेल्विस में चले गए हम लोग, हम ऊपर आते हैं, ये एब्डोमेन है। तो ये दिस इज डायफ्राम, और डायफ्राम में यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इसोफेजल हाइटस, और थोड़ा पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एओर्टिक ओरिफिस, और याद करें इस जगह पर होना चाहिए लिटिल हायर अप इन दी सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में क्या, केवल ओपनिंग, और ये केवल ओपनिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये सारी चीज़ें तो ये डायफ्राम है, और ये जो डायफ्राम यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इस डायफ्राम के अंडरनीथ इस जगह पे होना चाहिए था लिवर, जो हमने साफ किया। यहाँ इसोफेगस था, हमने कट कर लिया, और इस तरीके से यहाँ देखिए चला गया है ये रेक्टम वगैरह, तो यहाँ से कट गया, तो पूरा जीआईटी वगैरह हमने सारा साफ करके, ना कोई स्प्लीन, ना यहाँ लिवर, ना कोई गाल ब्लैडर वगैरह, सारी चीजें हमने साफ करके यहाँ आपको दिखाया है। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल स्ट्रक्चर इन विच द वर्टिब्रल कॉलम इज हिडन बाय द मसल्स ऑब्वियसली, और यहाँ पर आपको एक चलो वर्टिब्रा दिखाया जा रहा है। And now on two sides of the vertebral column is actually suspended here the two kidneys. And here two kidneys, you see that from the hilum of each kidney will emerge the ureter. तो इसका मकसद है कि ये भी इस पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में डेकोरेटेड, ये ऐसे ही है जैसे वाल के ऊपर तुमने कोई फ्रेम लगाया हुआ हो, कैविटी में नहीं है। जैसे आप बैठे हुए कुर्सियां, ये कैविटी के अंदर है, लेकिन ये जो बोर्ड है ये वाल के साथ चिपका हुआ है। तो चिपका हुआ है, हमने किलो से चिपकाया है, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ इस तरीके से है, ये एम्बेडेड है बाय मसल, बाय द कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये ऐसा नहीं समझना कि ये यहाँ पर कोई फिक्स्ड है, यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ ये सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ फेट एंड फेशा एंड अदर्स, ये उसके अंदर सस्पेंडेड है, होल्ड करके बैठी हुई है फेशा वगैरह उसको। और emerging from its hilum will be ureters, and now ureters are going downward here like this, vertically downward here, until they will cross now the pelvic inlet and will enter into the pelvis, क्योंकि उसको जाना है यूरिनरी ब्लैडर में, जो हमारे पेल्विस के स्ट्रक्चर्स में से एक है। लेकिन यूरेटर का आखिरी हिस्सा यकीनन पेल्विस में है, लेकिन बड़ा हिस्सा इसका एब्डोमेन में है। कौन सा? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे यहाँ से एक ट्यूब में चिपका के रखूँ यहाँ ऐसे। चलो इसका तो कुछ नहीं होगा, ये चला जाएगा भाई, इसको बंद करो, इसको प्रोजेक्टर को बंद करो, ये जल जाएगा। ट्यूबलाइट का खैर है, कोई मसला नहीं है। खोलो खोलो इसको खोलो। Understand? So if I actually draw here vertebral column means 5 lumbar vertebrae. If the 5 lumbar vertebrae you are actually drawing here,
Undersized lumbar vertebrae. So on two sides of either side of lumbar vertebrae is lying here kidneys. You know that the right kidney and the left kidney, if you are comparing them, so right kidney because it is actually lying, ये जो upper pole है, ये आपको kidney आपको पता है कि ये under the liver है. So most of the kidney is lying under the liver and it is actually making impression on the visceral surface of the liver. अब right lobe of the liver is very large. That's why the kidney will be actually pressed little down now. इसका मकसद ये है कि left और right kidney में ये फर्क है कि left kidney it is making impression, बेटा बात नहीं करो. And the left kidney is making impression on the visceral surface of spleen. And the right kidney is making impression on the visceral surface of liver. And right lobe of the liver is so large that it will actually try to push the kidney little down. और spleen क्योंकि इतनी बड़ी नहीं है, spleen आपको पता है कि it is just lying under rib number 9, 10 and 11 इतनी ऊपर होती है, तो left kidney जो है वो much higher than the right kidney. तो वो किडनी के मुकाबले में आप देखें दोनों को कंपेयर करेंगे तो राइट किडनी विल बी लिटिल लोअर देन दी राइट किडनी. तो ये जो है यहां पर इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हायर आपको यहां नजर आएगी लाइक दिस वन. दोनों को आप यहां पे देख सकते हो. तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस. और यहां से निकल रहे हैं क्या, दो यूरेटर्स. ईच यूरेटर विल बी लाइक दिस. ये दो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से यहाँ पर ये मौजूद हैं. ये सिर्फ यहाँ ये ही नहीं है, बट यू हैव एक्चुअली वन मोर स्ट्रक्चर विच इज इन फैक्ट लाइंग हियर ऑन दी अपर पोल ऑफ योर ईच किडनी. यू सी दैट दिस कॉल्ड द सुप्रारेनल ग्लैंड एंड दैट इज कॉल्ड द सुप्रारेनल ग्लैंड. अब सुप्रारेनल ग्लैंड यहाँ पर इस तरीके से बैठा. अब दोनों का देखें, इसके स्ट्रक्चर में फर्क देखना कैसा है. दिस इज मोर लाइक यू सी मोर क्रिसेंटिक, सो मच सो दैट इट इज लोअर पोर्शन इज एक्चुअली हाइडिंग द मिडिल साइड इज रीचिंग अप टू द हाइलम. ये देखिए हाइलम तक पहुंच गया है, ये हाइलम तक नहीं पहुंचेगा. और इसकी मैं बात बताता हूं कि ये हाइलम तक क्यों नहीं पहुंचने वाला है. ये मोर पैरामिडल है, ये मोर क्रिसेंटिक है. And these are called suprarenal glands. Suprarenal glands. In addition to the kidney, they are. That's why I call them adrenal glands also. Adrenal. In addition to the kidney. ये ऐड हुए हैं किडनी के साथ, लेकिन ऐसे भी नहीं ऐड हुए. किडनी को अगर आप यहाँ से निकाल भी लेंगे ना तो ये वहीं रुके रहेंगे. They are just like a cap. ये बिल्कुल टोपी की तरह चढ़े हुए हैं ऐसे. यानी अगर आप यहाँ से अपना हेड उठा भी ले तो टोपी उधर ही रहेगी. ये नहीं है कि उसके साथ हैं. ये ऐसे नहीं है कि हेड आ गए तो बाल भी साथ आएंगे, कोई उसके साथ मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है. इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. ये कहीं और से आया है, ये किडनी के साथ एक्चुअली इसका कोई वास्ता ही नहीं है. जब आगे चल के बताऊंगा कि किडनी के सर पे आके क्यों बैठा हुआ है टोपी की तरह, इसकी क्या वजह क्या है इसकी. वरना ये यहाँ ना भी बैठा हुआ होता ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं विच आर एक्चुअली गिविंग देयर सीक्रेशंस इनटू द ब्लड. वो ब्लड तो बॉडी के किसी भी हिस्से में होता है, तो किडनी के ऊपर आगे बैठने की क्या जरूरत है. कहीं भी बैठ जाए, मेरी तरफ से ये थ्रोट में भी बैठ जाए ना तो इसकी सीक्रेशन मुझे मिल जाएगी. तो ये किडनी के ऊपर ही आके बैठने की क्या जरूरत है. ये चल के आपको पता चल जाएगा कि ये किडनी के ऊपर आके क्यों बैठा है. हालांकि किडनी के साथ इसका यकीन माने कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं. कहीं भी बैठ जाता, मेरी तरफ से ये ब्रेन के अंदर क्रेनियल कैविटी में भी बैठ जाता ना. वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं गया था कि क्रेनियल कैविटी में बैठ गया है उधर. हालांकि क्रेनियल कैविटी में बैठने का कोई सेंस ही नहीं बनता. उसको यहां से निकलता हूं, छोटा सा है, उसको हम थ्रोट में यहां पर टॉन्सिल के साथ बिठा देते. बिलाखिर उसके हार्मोन्स को जाना है कहां पर, ब्लड में. और ब्लड तो हर जगह मौजूद है. फिर यहां किडनी के ऊपर आके बैठने की क्या जरूरत है. चल के दिखाते हैं ऐसा क्यों हुआ है. अब यहां पर आप देखें दो किडनीज हैं एंड देन द टू सुप्रारेनल ग्लैंड्स. और उसके बाद जो दो स्ट्रक्चर्स और आप यहां पे देखेंगे वो होंगी द ग्रेट वेसल्स. और आपको पता है कि ये जो जगह यहां है L1 और उसके ऊपर है T12, तो यहां से निकल रहा है आपका सेंटर में आपका एक मेजर वेसल and that is aorta, जिसको हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं. And now this is your abdominal aorta.
इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर। ये भी आपको करना है, ये आपका एक और स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू डू हियर आफ्टर 2 किडनीज। एक करेंगे आप 2 सुप्रारेनल ग्लैंड, एक करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। उसके बाद 2 यूरेटर्स, थोड़ा सा कंपेयर करना होगा। एंड देन इन द मिडल यू विल सी हियर दिस ग्रेट वेसल दैट इज कॉल्ड द एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, बिकॉज एओर्टा वाज एक्चुअली प्रेजेंट पार्शियली इन थोरेक्स आल्सो, थोरेसिक एओर्टा। ये डिसेंडिंग एओर्टा के 2 हिस्से होते हैं, एक थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट, जिसको यहां पर हमें करना होगा कि वेयर फ्रॉम इट बिगिंस, इट्स बिगिनिंग, वेयर इट टर्मिनेट्स, इंपॉर्टेंट रिलेशंस इन द मिडल एंड द ब्रांचेस व्हिच आर सप्लाइंग वेरियस ऑर्गन्स। न सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ फिर एक और ग्रेट वेसल होगी जो रिटर्न करेगी, एंड दैट विल बी द इंफीरियर वेना केवा। एंड दैट इंफीरियर वेना केवा, यू नो दैट इट इज ए passing through the caval opening and it entering into the right atrium, so it should be on the right side. ये अगर मिडिल में है तो इंफीरियर वेना केवा लेफ्ट पे नहीं होगी, राइट पे होगी, तो इट विल बी एक्चुअली ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड से आप यहाँ उसको, इस एक और स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम करेंगे। नाउ अनदर स्ट्रक्चर विल बी योर इंफीरियर वेना केवा। सो नाउ यू विल हैव योर एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा एंड, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। और उस दिन कौन कर रहा था, एंड व्हाट, इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा। वेरी नाइस, एक ही दिन में देखो कैसे करेक्ट हो गया तुम्हारा, अंडरस्टैंड। सो दिस इज बी इंफीरियर वेना केवा एंड एओर्टा, एंड हियर इज किडनी, suprarenal gland. We call them adrenal gland also, adrenal in addition to kidney, because lying above, that's why we call them suprarenal also, above AP, that's why, क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा था एक हार्मोन, क्योंकि ये है एड्रिनल ग्लैंड, तो उस हार्मोन का नाम भी था एड्रेनलिन। लेकिन क्योंकि आजकल इसको हम बोल रहे हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, इसलिए आजकल उस हार्मोन का नाम है, बिकॉज इट इज सुप्रारीनल, इट इज एपिनेफ्रिक, दैट्स व्हाई द हार्मोन्स नेम हैज बीन एपिनेफ्रीन। जो कि किसी जमाने में एड्रेनलिन नाम था, आज है उसका नाम एपिनेफ्रीन। नेफ्रो किडनी के साथ, एड्रीनल किडनी के साथ, तो अब हम एड्रेनलिन नाम नहीं डालते, हम एपिनेफ्रीन का, तो जिस का एपिनेफ्रीन। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स, ये 5 स्ट्रक्चर्स ये आपको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में करने होते हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अगर देखेंगे तो दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली प्रेजेंट हियर, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे क्योंकि इनको कवर कर रहा है एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन। देखो, आप अगर फ्रंट से गए हो तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आपने देखे थे 9 स्ट्रक्चर्स, एक सैंडविच शुरू का, एक सैंडविच आखिरी, और बीच में 3 मसल। और जो शुरू का था सैंडविच वो था स्किन, अंडरस्टैंड। तो यूरेटर पर खिंचा हुआ आएगा। ऐसे इसी किडनी को जो फ्लोटिंग हो ना इस तरीके से, कभी ऐसे आ जाए कभी ऐसे आ जाए, ये कब होता है? जब फेट बहुत कम होता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल। और फेट तब कम होता है जब न्यूट्रिशन बहुत कम होती है, वेस्टिंग डिजीज होती है, जिसमें फेट आपका वेस्ट हो जाता है। इसको हम नेफ्रोप्टोसिस भी कहते हैं, नेफ्रोप्टोसिस। तो जिन पेशेंट्स में नेफ्रोप्टोसिस होती है ना, तो उनमें यूरेटर पर ऐसे खिंचा हुआ आता है, उनको बाकायदा यहाँ पेन होता है, ऐसे लगता है कोई स्टोन ना हो। बहुत कोशिश करके इन्वेस्टिगेट करके इधर उधर देखते हैं, कोई स्टोन नहीं होता, फिर भी वो दर्द की शिकायत करते हैं। वजह क्या होती है? खिंचा हुआ ना हो। क्यों? क्योंकि किडनी उधर सेटल नहीं हो पाती, किडनी ऐसे गिर जाती है। इसको फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं, वो इसका नाम होता है नेफ्रोप्टोसिस। इसके लिए टेक्निकल टर्म जो है इंग्लिश टर्म, या इसके लिए मेडिकल टर्म है नेफ्रोप्टोसिस। अब यहाँ पर आप किडनी, मैंने बताया दोनों जो किडनी के जो लेवल्स हैं, इन विच द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अगर मैं यहां पर हाइलम पर, अगर मैं हाइलम पर एक लाइन डाल दूं ना, अगर, तो ये जो लाइन इस वक्त डाल रहे हैं यहां पर, ये इमेजिनरी लाइन है। And that imaginary line passes through the lower border of L1. इस प्लेन को हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये मैंने आपको शायद बताया भी था पहले जब हम शुरू में कर रहे थे। क्या कहते हैं उसको? ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, इट इज पासिंग थ्रू दी हाइलम ऑफ बोथ किडनीज। आपसे पूछो एक ही लेवल पे आ गई है, तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो ना, ये फर्क देखें,
अब देखिए फर्क, देखिए ये हाइलम से पास जरूर हो रही है, बट दिस सेम लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द राइट हाइलम, बट इज पासिंग थ्रू दी, जिससे जाहिर हुआ कि ये किडनी जो है ये हायर लेवल पर है देन, हालांकि ये ट्रांसपायलोरिक प्लेन पर। तो इसका मकसद है कि अगर आपसे आगे से कोई पूछ लेता है व्हाट स्ट्रक्चर्स आर लाइंग एट द ट्रांसपायलोरिक प्लेन, तो उसमें से एक है हाइला ऑफ बोथ द किडनीज। यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो आपने देखा था इस जगह पर, क्या सिर्फ ये है या इसके ऊपर लाई करेंगे हमारे सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स? ये तो प्राइमरी हैं, मौजूद हैं शुरू से ही डेवलपमेंटली, लेकिन इनके अगेंस्ट प्रेस हो जाते हैं कौन? जीआईटी के ऑर्गन्स। सबसे पहले कौन? वो ड्यूडिनम। क्या अकेला ड्यूडिनम? उससे उसमें फंसा हुआ पेंक्रियास भी। तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां से आपको पता है कि हाइलम के ऊपर से पास होता है ड्यूडिनम का कौन सा हिस्सा? सेकंड पार्ट, और थर्ड विल बी अक्रॉस ऐसे। अगर अक्रॉस है तो उसमें कौन फंसा हुआ है? पेंक्रियास, एंड पेंक्रियास विल बी एक्चुअली लाइंग हियर लाइक दिस, ऐसे इस तरीके से यहां पर होता हुआ ये पेंक्रियास यहां आ जाएगा और किसको टच करेगा? स्प्लीन को। ये पेंक्रियास इस तरीके से यहां पर है। तो पेंक्रियास इटसेल्फ इज अ सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। कौन लेके गया उसको? ड्यूडिनम लेके गया अपने साथ, और ये प्रेस हो गए यहां पर, वो किडनी को छुपा लिया है ऑलमोस्ट। और ये हाइलम के ऊपर से क्या पास हो गया है? टेल ऑफ द पेंक्रियास। और यहां कौन है? ये हेड है हमारा, और ये इस तरीके से ये ड्यूडिनम यहां पास हुआ। अंडरस्टैंड? तो ये, और ये आपका हेड है, और उसके बाद नेक है। सो नेक इज आल्सो लाइंग एट द ट्रांसपायलोरिक प्लेन। नेक कहां है? तो ट्रांसपायलोरिक प्लेन पे जो स्ट्रक्चर्स आपको पूछे जाते हैं, वन इज दी बोथ हाइला ऑफ द किडनीज, नेक ऑफ द पेंक्रियास, एंड देन हियर एट सम लेवल विल बी इवन योर you can say even gallbladder fundus also। ये सारे स्ट्रक्चर्स और चंद और स्ट्रक्चर्स आएंगे यहां पर, और इसके साथ रिलेटेड है कौन? L1 वर्टिब्रा passing through the lower border of L1, or you can say intervertebral disc between L1 and L2, जैसे भी आप कहें। तो ये सारे स्ट्रक्चर यहां से पास होते हैं। और यही नहीं, पाइलोरस ऑफ द स्टमक आल्सो। लेकिन पाइलोरस ऑफ द स्टमक किन लोगों में? एम्प्टी स्टमक एंड व्हेन यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग अपराइट। अगर आप ऐसे सीधे खड़े हैं एम्प्टी स्टमक के साथ, तो आपका पाइलोरस जो होगा दैट विल बी लाइंग ऑन ट्रांसपायलोरिक प्लेन। तभी तो उसका नाम ट्रांसपायलोरिक प्लेन है। सबके नाम हम ले रहे हैं, स्टमक के पाइलोरस का काम नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि इस लाइन का नाम ही ट्रांसपायलोरिक लाइन है या ट्रांसपायलोरिक प्लेन है। ट्रांसवर्सली अक्रॉस यहां पर इस तरीके से लाए करेगी। ये स्ट्रक्चर्स यहां लाए कर रहे हैं, और ये किडनीज यहां पर किस में दबी हुई है? फेट में। लेकिन किडनी फेट में भले दबी हुई हो, लेकिन किडनी को निकाल के अगर आप बाहर ले आए ना, अगर उसको आप ट्रे में पढ़ें उसको, तो जाहिर है पेरिटोनियम वगैरह तो पीछे रह गया। ये किडनी जो है दैट विल बी एक्चुअली लाइक दिस। और ये आपको पता है कि ये अगर मैं यहां से लेफ्ट किडनी को ले लूं, तो किडनी विल बी कवर्ड विथ अ कैप्सूल। इसका अपना कैप्सूल होता है। जैसे ना एक बॉडी हम ले आए तो वो कवर्ड होती है स्किन से, तो इसको अपना एक कैप्सूल है, वो इसका कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ थिक कोटिंग है इसके अराउंड, उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो इसके लेयर्स में जो पहला लेयर है वो क्या है? किडनी के अंदर हम स्किन को उतार के अंदर के स्ट्रक्चर तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका अपना कवरिंग क्या है? सबसे पहली रीनल कैप्सूल है। तो फर्स्ट लेयर इज रीनल कैप्सूल। और रीनल कैप्सूल से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? हाँ, पेरिटोनियम तो बाद में होगा, ये खुद जिसमें डूबा हुआ है फेट होगा। तो ये फेट होगा। ये इसका दूसरा लेयर है। इसको यहां पे हम कहते हैं पेरीरीनल फैट। पेरा नहीं, इसको हम कहते हैं पेरीरीनल फैट, पेरीनेफ्रिक या पेरीरीनल फैट। तो पहला लेयर क्या हुआ? जो उसको बिल्कुल एडहेरेंट है इसके बॉडी के साथ, कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। और नंबर 2 इज पेरीरीनल फैट। उसके बाद फिर इसको एक फेशियल कवरिंग है।
एंड दैट फेशियल कवरिंग इज एक्चुअली, अगर मैं हूं इस वक्त, आगे मेरे पेरिटोनियम चढ़ा हुआ है, जो मेरे आगे से गुजर गया है, मैं उसके साथ उसके पीछे रहता हूं, रेट्रो रहता हूं। रेट्रो एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि पीछे है तो हम उसको रेट्रो भी कह सकते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल। तो उसके बाद जो फेट आ गया क्या है, जाहिर है वो रेट्रो पेरिटोनियल फेट होगा। मैं अगर फेट में डूबा हुआ हूं, मेरे आगे से इसे एक थिन सी मेम्ब्रेन है जिसका नाम पेरिटोनियम है, तो मैं किस में डूबा हुआ हूं, रेट्रो पेरिटोनियल फेट में। और फेट रेट्रो पेरिटोनियल है, लेकिन वो जो किडनी के अराउंड है थोड़ा सा रेट्रो पेरिटोनियल फेट, उसका नाम है पेरिटोनियल फेट। हालांकि वो थ्रू आउट है, लेकिन मेरे अराउंड जब है ना तो वो खासा कंजेस्टेड है, तो उस सेगमेंट को हम कहते हैं पेरिटोनियल फेट। और उसके बाद जो और मैं पीछे चला जाऊंगा तो मुझे नजर आएगी क्या, फेशा। कौन सी, सॉस फेशा वगैरह वगैरह। यही मैं आगे ले आऊं तो फेशा ट्रांसवर्सैलिस। इसी फेशा ट्रांसवर्सैलिस से इस किडनी ने क्या किया, ये जो फेशा ट्रांसवर्सैलिस ऐसे आएगी और पीछे जाके सॉस फेशा वगैरह बनेगी, वो तो बनेगी सो बनेगी, लेकिन आते ही क्या करेगी, ये फेशा ट्रांसवर्सैलिस यहां से उठेगी, आके ये किडनी को अलग कमरा दे देगी, और जो अलग कमरा देगी तो इसका तीसरा लेयर बन जाएगा। किसके अराउंड, किडनी के अराउंड। अगर किडनी के अराउंड ये तीसरा लेयर बन गया है, जो दरअसल किसने दिया, फेशा ट्रांसवर्सैलिस ने दिया तीसरा लेयर, इसका नाम है रीनल फेशा। किसके साथ कंटिन्यूस, फेशा ट्रांसवर्सैलिस, ये रीनल फेशा कहलाएगी। अगर ये रीनल फेशा कहलाएगी, ये रीनल फेशा कहलाएगी, ये किस तरफ आई थी, किडनी की तरफ, जो खुद किस में डूबा हुआ है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट में, रेट्रो पेरिटोनियल फेट में। जैसे जो यहां आया और किडनी को उसने जो अलग कंपार्टमेंट दे दिया, स्प्लिट करके अलग कंपार्टमेंट दे दिया जब उसने, तो पता चला कि कुछ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट उस कंपार्टमेंट के अंदर आ गई। भाई मैं यहां खड़ा हूं, ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेट है मेरे अराउंड, अगर यहां से कोई ऐसी फेशा आ जाए जो स्प्लिट होके मुझे पूरा कवर कर ले, तो कुछ फेट उस कवरिंग के अंदर आ जाएगा और कुछ फेट बाकी जैसे कंटिन्यूस होगा दूसरों में। तो जो मेरे अंदर आ गया दरअसल वही था पेरिरीनल फेट। तो क्या सिर्फ पेरिरीनल फेट होगा, या इस रीनल फेशा के बाहर भी फेट होगा? यही तो वो फेट होगा जो बाकी फेट के साथ कंटिन्यूस होगा, उसका नाम है पैरारीनल फेट। क्या नाम है इसका? ये पैरारीनल फैट है। तो इसका मकसद यह है कि ये जो पैरारीनल फैट तुमने देखा और अंदर उसका क्या था, पेरिरीनल फैट, दोनों को जुदा करने वाला रीनल फैशा। ये 4 लेयर्स होते हैं जो दरअसल किडनी को कवर करते हैं और इसके स्टेबलाइजिंग और स्टेबलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी सी द किडनी लाइक दिस। 4 लेयर्स उम्मन आपसे पूछेंगे फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप। और ये जो आप यहां पे देखेंगे तो इसका मकसद है कि रीनल फैशा साइड वे इट इज कंटिन्यूस विथ fascia transversalis, and pararenal fat is sideway continuous with extraperitoneal fat, and वो जो अंदर आपने पेरीनेफ्रिक फैट देखा था, वो जस्ट कंडेंस्ड पार्ट ऑफ योर फैट जस्ट अंडर द रीनल फेशा एंड इज होल्डिंग दिस आल्सो। और ये जो फेशा है इस तरीके से यहाँ पर ये 4 लेयर्स आपको सुपरफिशियल टू डीप आपसे पूछे जाएंगे। और ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर है, बीन लाइक स्ट्रक्चर। और आपकी पूरी किडनी जो है ना वो हैंड जितनी नहीं, 3/4 ऑफ द हैंड जितनी हो सकती है। और जब आप इसको रखते हो तो उसके मीडियल साइड पर डिप्रेस्ड एरिया होती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइलम। किडनी में कोई भी स्ट्रक्चर, और क्यों डिप्रेस्ड एरिया, क्यों को लेफ्ट और राइट में जो नहीं, मीडियल साइड पर, आपने देखा होगा मीडियल साइड पर। अगर आप राइट किडनी पे देखोगे तो उसका हाइलम जो होगा वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा, और लेफ्ट किडनी का देखोगे तो हाइलम जो होगा, तो आप सीधा सीधा बोलो कि मीडियल साइड पर डायरेक्टेड होगा। मीडियल साइड पे क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां से चीजें आएंगी और जाएंगी। हाइलम जैसे दरवाजा है किसी एक जगह पे लगा हुआ होता है, आप कहीं से भी उठें जाएंगे यहीं से, आप कहीं से भी आएंगे इधर ही से। ये हम किडनी की इनसाइड है, अगर आना जाने का रास्ता यही है। जैसे हमने देखा था लंग में, अब कहीं से भी उठ के इधर उधर आए, लेकिन जाना होगा आपको उसके विसरल सरफेस पर, क्योंकि हाइलम विसरल सरफेस पे होता है। तो हाइलम में यहाँ पर देखेंगे कि विसरल सरफेस पे जाएगा, हाइलम ऑफ द लंग्स। फिर आपने देखा था अंडर सरफेस थी हाइलम में, क्या, पोर्टा हेपेटिस। एक्चुअली हाइलम नाम उसका प्यार से डाल दिया हमने पोर्टा हेपेटिस, वरना वो क्या है, हाइलम है।
तो हाइलम है वहाँ पर। और इसके साथ आप ये हाइलम और देख रहे हैं, हाइलम और भी हैं, ये सिर्फ हाइलम ये नहीं है, स्प्लीन में भी हाइलम है, लिम्फ नोड में भी हाइलम है। ये हाइलम सर बस ये सिर्फ लिवर के हाइलम का नाम बदल दिया है सिर्फ उन लोगों ने, उसका नाम पोर्टा हेपेटिस डाल दिया। तो जहाँ पर भी हाइलम है, यहाँ से स्ट्रक्चर्स आएंगे जाएंगे, आर्टरी जाएगी, वेन निकलेगी, यूरेटर निकलेगा, ये ऐसा ही हुआ था ना यहाँ पर लंग में भी और उसमें भी, जैसे ब्रोंकाई गए थे, जैसे बाइल डक्ट निकली थी, जैसे यहाँ से यूरेटर निकलेगा, आर्टरी जाएगी रीनल आर्टरी, वेन निकलेगी रीनल वेन। और ऐसा ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ है यूरेटर निकलेगा, क्योंकि जब आर्टरी अंदर जाएगी और वेन छोड़ेगी उसको, तो अंदर गई है और वापस आई है, इसलिए थोड़ी गई है कि उसको किडनी को ऑक्सीजन सप्लाई करनी है बहुत ज़्यादा। आर्टरियाँ क्यों जाती हैं? ऑक्सीजन देने के लिए। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देना उनका प्राइमरी वर्क नहीं है, उनका प्राइमरी वर्क है जाके फिल्टर हो जाना। आपको पता है किडनी कितनी है? ज़्यादा दोनों मिलाएं भी तो 100 ग्राम की होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपका टोटल जो कार्डिक आउटपुट है, यानी आपका हार्ट जो 1 मिनट में ब्लड को पंप करता है, वो 5 लीटर होता है 1 मिनट के अंदर। 5 लीटर ब्लड इज बीइंग पंप्ड बाय हार्ट एवरी मिनट, दिस इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट। उस कार्डिक आउटपुट का कोई 20%, ये 20% मैं कह रहा हूं, ये 21 है, ये 20% ऑफ योर टोटल कार्डिक आउटपुट इज बीइंग टेकन बाय द 2 किडनीज। इससे आप अंदाजा लगाएं, ब्रेन से भी ज्यादा, ब्रेन में भी इतना नहीं दे रहा है, यानी हार्ट ब्रेन को इतना नहीं देती जितना किडनी। ये इसलिए नहीं कि किडनी जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन की बेचारी को जरूरत है, क्या करें ज्यादा ब्लड देना है, नहीं नहीं, जो ब्लड गया है ना तकरीबन वैसा ही ब्लड वापस आ जाता है, ऑक्सीजन उसमें कम होती ही नहीं है, थोड़ी सी कम होती है। वरना आपने देखा होगा जो ब्लड जाता है ब्रेन को, जो वापस आता है वो गंदा होके आता है, क्योंकि सारा ऑक्सीजन वो ले लेता है। किडनी ऐसे नहीं है, जैसे गई वेन में वैसा ही ब्लड वापस, थोड़ा सा फर्क ऑक्सीजन का, उसने ऑक्सीजन इतनी ली ही नहीं। वो जब नहीं ली तो तुमने उसको 20% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट दिया क्यों? मैं आपकी तनख्वाह कर दूं 2 लाख रुपए और पता चला कि आप 1,90,000 रुपये आप 30 तारीख को आपके बचे पड़े हुए हैं वहाँ पे, तो मैं क्यों दे रहा हूँ इतनी तनख्वाह जब आपकी ज़रूरत ही नहीं है इतनी? तो किडनी को क्यों दे रहे हैं जब वो ऑक्सीजन ले ही नहीं रही है? इसलिए दे रहे हैं ताकि ज़्यादा देंगे तो जल्दी जल्दी फिल्टर करेगी वो। वरना मैं किडनी की साइज़ को देख कर अगर उसको दे देता 2%, तो ये तुम्हारा 5 लीटर तो साफ होने में 6 घंटे ले लेता, और 6 घंटे में कितनी गंदगियाँ जमा हो जाती। तो नेचर ने उसको सप्लाई इसीलिए दी हुई है। तो सप्लाई इसकी इतनी जबरदस्त सप्लाई है। किडनी हैज गॉट ऑलमोस्ट 21% ऑफ द टोटल प्लाज्मा फ्लो इज टू जस्ट अ पेयर ऑफ 2 किडनीज। इतना ब्लड लेती है वो। तो यहां पर हमने देखा उसको फ्लो भी इतना जबरदस्त है, और ब्लड सप्लाई उसकी, आप उसकी आर्टरी देखेंगे ना, आपको लगेगा जैसे एओर्टा जा रहा है उसके अंदर, इतनी मोटी आर्टरी है दोनों किडनीज को। एंड दिस इज एक्चुअली 4 लेयर्स। अब आप इसको यहाँ से लेके आएंगे, और हाइलम हमने देखा, तो हाइलम में कौन जाएगा? आर्टरी। कौन छोड़ेगा? वेन। और कौन छोड़ेगा? यूरेटर। और ये यूरेटर इस वक्त देख रहे हो ना यहाँ पर, अब देखें यूरेटर जिस वक्त छोड़ रहा है और जिस वक्त वो डाउनवर्ड जा रहा है टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, दोनों में देखें फर्क देखें कैसे है। ये स्टार्ट जब वो छोड़ रहा है और उसके बाद फर्क क्या है? इतना डायलेटेड है व्हेन इट इज एक्चुअली लीविंग, एंड व्हेन इट इज वर्टिकल कोर्स से रहा है तो वो नैरो हो जाता है। जिस वक्त वाइडर है ना, ये जो अपर वाइडर पोर्शन ऑफ यूरेटर, व्हाइल इट वाज एक्चुअली लीविंग फ्रॉम द हाइलम, यहां से जब हाइलम से ये छोड़ रहा है, तो जिस वक्त ये हाइलम से निकल रहा है तब तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होगा ना, उसके बाद ये वर्टिकल हो जाएगा। और जैसे आप देखें हॉरिजॉन्टल के बाद जैसे वर्टिकल हो जाएगा तो एकदम से वो नैरो हो जाएगा। अपने इनिशियल डायमीटर से वो 10 टाइम्स नैरो हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ऐसे जो कर देंगे तो आपको, तो ये जो नैरो है, तो अपर वाइडर पोर्शन ऑफ यूरेटर को विच इज एक्चुअली जस्ट लीविंग नाउ योर हाइलम, उसको कहते हैं पेल्विस। ये वो पेल्विस नहीं है जो अलग से रीजन है, इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, क्योंकि ज्यादा मशहूर पेल्विस वो है, तो इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये किडनी की पेल्विस है। पेल्विस वाइडर पोर्शन, बेसिन को कहते हैं पेल्विस, तो इट्स कॉल्ड द रीनल पेल्विस। तो अपर वाइडर पार्ट ऑफ अपर इनिशियल वाइडर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, एंड देन दिस इज यूरेटर व्हिच इज एक्चुअली कमिंग डाउन हियर। उसका मकसद यह है कि ये जो वाइडर होगा एकदम से नैरो हो गया कि नहीं,
तो सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, जहां अगर खुदा न खास्ता यहाँ अगर कोई स्टोन बन जाए किडनी का और यहाँ से स्लिप हो जाए, तो सबसे पहले फंसने का चांस है किस जगह पर? जहां पर पेल्विस और यूरेटर की जंक्शन है, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर। जिस जगह पर एक स्टोन कोई बन गया तो फंसने के चांसेस इधर ज्यादा हैं। कंस्ट्रक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। देयर आर 3 प्लेसेस वेयर द यूरिनरी, आई से वेयर द यूरेटर इज कंस्ट्रिक्टेड, 3 स्पॉट्स वेयर द यूरेटर इज कंस्ट्रिक्टेड वेयर द स्टोन। ठीक है, इसको हम किस तरीके से ओपन कर रहे हैं? कैसे? रीनल साइनस अंदर पढ़ ही नहीं पा रहे थे, अब रीनल साइनस को मैं क्या पढ़ूं, और ऊपर से किडनी क्या पढ़ना है ऊपर से? वो तो कोई लैंडमार्क ही नहीं है उसका। तो हमने इसको क्या किया, ऐसे कट करके ऐसे देखा, अंदर की हकीकतें अंदर देखेंगे। यहाँ पर अभी भी हम ग्रॉस एनाटॉमी कर रहे हैं। टॉमी तो एटलीस्ट हमने कुछ लिहाज रखा एनाटॉमी का, और इसको कुछ तो हमने पढ़ लिया, वरना तो हमने मार्फोलॉजी ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे करके आप पढ़ के आ गए। ये तो आप मार्फोलॉजी पढ़ी आपने, मेरी तरफ से तो एक तरह से ज्योग्राफी पढ़ी आपने, एनाटॉमी तो नहीं पढ़ी। किडनी की ज्योग्राफी कर ली आपने, बस हमें उसकी टॉमी करनी थी, एनाटॉमी करनी थी। और एनाटॉमी में एटलीस्ट हम उसको खोला तो है, कुछ तो लिहाज किया हमने, और अंदर से देखा तो एक चीज ही बिल्कुल अलग, 2 क्लियर कट रीजन्स। एक रीजन तो वो खुद ही साइनस होगा। जब हम ऐसे 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 अंदर गए थे और कट करके ऐसे खोलोगे तो कुछ हिस्सा तो साइनस का हिस्सा होगा। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हैंड पे बता देता हूँ। हैंड पे बता रहा हूँ, हर दफ़ा मेरे बच्चे पूछते हैं ये क्या आप हाथ पे क्या लगाया आपने? ये ऐसे ये ऐसा क्या होगा? हाइलम से अंदर यहाँ तक, ठीक है, रीनल साइनस। तो दिस विल बी एक्चुअली रीनल साइनस एंड द रेस्ट ऑफ इट विल बी एक्चुअली द रिमेनिंग मटीरियल ऑफ किडनी। उसमें से 2 रीजन्स बिल्कुल क्लियर कट नजर आएंगे। एक ये हिस्सा पेरिफेरल, और एक ये हिस्सा दैट इज मेडुला। हमेशा पेरिफेरल चीज को कहते हैं कार्टेक्स। ये सिर्फ किडनी के साथ रिलेटेड नहीं है। जहां आप वर्ड यूज करते हैं ना, पेरिफेरल, डीप बोलते हैं ना ऐसा, तो हर वो चीज जो पेरिफेरल हो, जो तुम्हें टच हो, वो पेरिफेरल है, तो हम उसको कहते हैं कार्टेक्स। ये चीज तुम्हारे सेरिब्रम में भी है। और सेरिब्रम में, वो सेरिब्रम इसलिए नहीं, वो कार्टेक्स कोई ऐसे कोई कार्टेक्स नहीं है, दिस इज अ पेरिफेरल थिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कार्टेक्स। तो कार्टेक्स हमेशा पेरिफेरल को कहते हैं। स्प्लीन में भी जो बाहर बाहर से चीज होती है, कार्टेक्स। लिम्फ नोड में जो बाहर बाहर से चीज होती है, कार्टेक्स। सेरिब्रम में जो बाहर बाहर से सुपरफिशियल चीज होती है, कार्टेक्स। सेरिबेलम में भी कार्टेक्स, तो हम उसको कार्टेक्स कहते हैं। और जहां पेरिफेरल होगी ना कार्टेक्स, तो वहां सेंट्रल का नाम होगा मेडुला। जैसे ना होता है डीप, सुपरफिशियल, देन उसका जोड़ा होता है डीप, तो यहां पर कार्टेक्स का जोड़ा है मेडुला। तो अंदर वाली चीज को हम कहते हैं मेडुला। तो मेडुला वर्ड पड़ता है हर उस चीज के लिए जो इनसाइड होती है, और जब इनसाइड या डीपर होती है तो उसकी सुपरफिशियल का नाम फिर पेरिफेरल नहीं पड़ता। ऐसे नहीं बोल सकते पेरिफेरल एंड मेडुला, नहीं। अगर तुमने यहां मेडुला डाला नाम डीपर के लिए, तो सुपरफिशियल के लिए नाम डालना पड़ेगा तुम्हें कार्टेक्स। तो यहां कार्टेक्स और मेडुला, तो ये सुपरफिशियली आपको नजर आई क्या? कार्टेक्स, और डीपली नजर आएगी तुम्हें क्या? मेडुला। तो ये सुपरफिशियल जो नजर आया तुम्हें ये कार्टेक्स है, और डीप जो नजर आएगा ये तुम्हें मेडुला है। लेकिन उसके बावजूद भी 1/3 तकरीबन तुम्हें नजर आएगा वो फ्री स्पेस, जिसका नाम होगा साइनस। इसका मकसद है कि ये इसका जो बड़ा हिस्सा है वो मेडुला है, वो थिन रिम जो है ना उसकी, वो कार्टेक्स है। और जैसे आप इससे इनर मेडुला पे नजर डालेंगे तो वहां तुम्हें नजर आएगा ये सिलसिला। तुम्हें इस किस्म के ट्रायंगल्स नजर आएंगे, इनका नाम होता है पिरामिड्स।
कितने होते हैं? ये 10 और 12 के बीच में होते हैं। दी आर बिटवीन 10 एंड 12, एक दर्जन के करीब आपको नजर आएंगे क्या? पिरामिड्स। और पिरामिड्स का अरेंजमेंट क्या है? पिरामिड्स अरेंजमेंट इज इन सच अ वे दैट देयर bases are towards the cortex and apices are towards the renal sinus। और ये इस तरीके से पिरामिड आपको नजर आता है। और जैसे आप इन पिरामिड्स को देखने की कोशिश करेंगे तो पिरामिड एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि गैप होता है? इन गैप को कहते हैं हम रीनल कॉलम्स। दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। और रीनल कॉलम्स में मौजूद होती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट विद इन रीनल कॉलम्स। अब यहां से तो आपने ये देखा ये, अब हमें सवाल ये पैदा होता है कि दीज पिरामिड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? क्या ये ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर है, ऐसे कोई हार्ड सी चीज, कोई जेली लाइक चीज पड़ी हुई है क्या यहां? ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर मैं एक पिरामिड को वहां बाहर ले आऊं ना ऐसे, तो pyramids are formed why? Because they are actually made up of and composed of ducts। और ये डक्ट्स इस तरीके से यहां पे पड़ी हुई है। तो यहां कौन पड़ा हुआ है? डक्ट्स हैं। और डक्ट्स जो हैं ये कार्टेक्स की तरफ इस तरीके से थोड़ा सा, जैसे मेरा हैंड है ये रेडिएटिंग है, और इस रीनल साइनस की तरफ ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 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 झाड़ू होता है ना, झाड़ू में तीलियां होती है ना, आपको तीलियां नजर आती है। ये तीलियां जिस जगह सुई पर हाथ पकड़ता है उस जगह पर वो कॉम्पैक्ट होती हैं। चाहे 500 तीलियों से बना हुआ एक झाड़ू है, जिस जगह पर वो 500 तीलियां इससे जुड़ी हुई हैं वहां पर बंधा हुआ है कोई बकल वगैरह लगा हुआ है, तो ये देखिए ऐसे होता है ताकि वो हाथ पकड़ सके। लेकिन वो जिस जगह पर वो झाड़ू वाला जो दूसरा डिस्टल एंड होता है, क्या वैसे ही पैरेलल होता है कि वो खुला हुआ होता है ऐसे? एग्जैक्टली वैसा ही सिलसिला यहाँ है। अगर ये मैंने यहाँ पर डक्स 500 डक्स उठाई ऐसे, तो डिस्टली टुवर्ड्स द कार्टेक्स, पेरिफेरली टुवर्ड्स द कार्टेक्स, क्या वो कॉम्पैक्ट होंगी कि वो थोड़ी सी खुली हुई होंगी? लेकिन टुवर्ड्स द रीनल साइनस वो, इसलिए तो उसका शेप जो है वो पिरामिडल है, ट्रायंगुलर है, क्योंकि इसका बेस वाइडर है और अपेक्स नैरोअर है। तो पिरामिड इसीलिए तो नाम पड़ा हुआ है। लेकिन बना किस चीज से है? ये डक्ट से बना है। इनका नाम है कलेक्टिंग डक्ट्स। और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आके कहां आके जमा हुई हैं? अब साइनस के करीब, साइनस में तो नहीं, साइनस के करीब आके जमा हुई हैं। वो साइनस के करीब आके जमा हुई हैं। तो क्या ब्रॉडर हैं कि नैरोअर हैं? उस नैरोअर पॉइंटेड चीज को कहते हैं पेपिला, और इसका नाम है रीनल पेपिला। पेपिला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं, क्योंकि ये नैरो है। वाइडर है कि नैरो है? तो ये नैरो है। ये ऐसे है जैसे मैं इस तरीके से यहाँ पे ये नैरो, तो ये नैरो है 5। मैंने 5 देखें, आगे से ये 5 फिंगर्स मेरी इस तरीके से खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जमा की हुई हैं। तो ऐसे 500 जमा और आगे से ये खुली हुई। तो ये जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं क्या? रीनल पेपिला। तो इसका मकसद है कि एक एक जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर हंड्रेड्स में नेफ्रॉन्स अपना फ्लूइड डालते हैं, यानी यूरिन डालते हैं। अगर एक डक्ट में कोई 100 के करीब नेफ्रॉन्स अपना यूरिन डाल दें, रफली 100 बता दूं, तो एक पिरामिड एक्टिविटी होगी कितने नेफ्रॉन्स की? अगर ये टोटल पिरामिड में थी मेरी 500 डक्ट्स, हर डक्ट जो है वो रिसीव कर रही थी कोई 100 नेफ्रॉन्स, तो इसका मकसद ये है कि ये टोटल मिला के ये एक पिरामिड एक्टिविटी होगी टू कलेक्ट द यूरिन एंड पुट इट आउटसाइड ऑफ हाउ मेनी नेफ्रॉन्स? भाई 500 हर एक करेगा 100 तो हो जाएंगी 50,000, तो 50,000। अगर ये होगी 50,000 तो एक किडनी में कितने पिरामिड्स हैं? समझ लो कि 10, 12 हैं या 10 हैं, चलो, तो ये तकरीबन 5 लाख के करीब नेफ्रॉन्स एक किडनी से अपनी यूरिन को बाहर निकालते हैं। तो ये जब बाहर निकालेंगे कहां से? रीनल पेपिला से, क्योंकि पेपिला में कितनी डक्ट्स मुझे नजर आ रही हैं? एक पिरामिड पे मैं हूं तो 500 डक्ट्स, उन 500 डक्ट्स में से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है।
तो ये एक ये कारकर्दगी कितने पैरामिड्स की है? एक पैरामिड की, क्योंकि 500 है। ऐसा है सब पैरामिड से हो रहा होगा, लेकिन ये जो पैरामिड से निकल रही है लास्ट मोमेंट पे, ये कितने ड्रॉप्स? 500 ड्रॉप समझ लो, ड्रॉप 500 डक्ट्स है ना मेरी, ये जो बाहर निकल रही हैं, तो इनको कलेक्ट कौन करेगा? ये तो फिर इधर ही कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ फैल जाएगा मेरा यूरिन। तो इसको कलेक्ट करने के लिए नीचे एक बाउल चाहिए। कितने बाउल ऐसे? 10 चाहिए, क्योंकि हर पैरामिड 500, एक एक को 500 बाउल दे दूंगा, ये तो पूरा शादी हाल बन जाएगा। तो यहां पर इसको क्या करना है? यहां पर इसको एक छोटा सा बाउल देना है, ऐसे। क्या करना है? बाउल देना है। और ये बाउल कहां मौजूद होगा? ये बाउल जो है ये मौजूद होगा रीनल साइनस में। ये जो छोटा सा बाउल है, इस बाउल की शक्ल होगी ऐसे। ये है तुम्हारा पैरामिड, और ये है क्या? पेपिला, और ये है हमारा वो छोटा सा बाउल, जिसमें से ये 500 डक्ट्स क्या करेंगी? छोटा छोटा सुराख कर देंगी, ताकि यहां का फ्लूइड किस में आए? इस बाउल में आए। इस बाउल का नाम है कैलेक्स, तो इसका नाम है माइनर कैलेक्स। यही मेजर होगी तो फिर आगे से फिर कौन होगा? फिर आगे से कोई कर्नल वर्नल होगा क्या? तो यहां पर पहले से हम डरे हुए फौजियों से, और ऊपर तुम लोग अभी से मेजर, तो यहां होगा माइनर। तो इसको हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। कितने माइनर? जितने पैरामिड, 12 नहीं, क्या हो सकता है 12, डिपेंड करता है कि पैरामिड्स कितने हैं। जितने सूबे उतने गवर्नर। तो यहां पर आपको मिलेंगे माइनर कैलेक्सिस। आपके पूरी किडनी का जितना भी फ्लूइड, जितना भी यूरिन है, इन 10 से 12 माइनर कैलेक्सिस में आ गया है। वो माइनर कैलेक्सिस तो यहां पर मौजूद मिलेंगे। ऐसे कितने? मैंने कहा 10 से 12, तो एक और माइनर, एक और 3 से 4 माइनर मिलके एक वाइडर चेंबर बना लेंगे। अब ये है हमारा, अब इसको प्रमोशन मिल गई, मेजर हो गया है। अब इसका नाम है मेजर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स में कितने पैरामिड का यूरिन होगा? डिपेंड करता है कि एक मेजर कितने माइनर से मिलके बना है। अगर 4 माइनर से मिलके बना है, तो 4 माइनर से मिलके बना है, तो 4 पैरामिड्स का इसमें यूरिन होगा। और ये मेजर कैलेसिस यहां पर मौजूद होंगे। तो कितने मेजर कैलेसिस होते हैं? ये मेजर कैलेसिस होते हैं 3 से 4, रादर 2 से 3। अगर ना आपके 8 या 9 माइनर कैलेसिस हैं तो 2 मेजर से काम हो जाएगा, लेकिन अगर 12 हैं तो 3 मेजर होंगे। और अगर 3 मेजर होंगे तो क्या 3 मेजर में से अगर 2 मेजर होंगे तो क्या 2 मेजर ही बाहर आ जाएगा हैलम से? नहीं, अभी साइनस में रुको। साइनस तभी तो दिया है कि जो भी तुम्हें अरेंजमेंट करना है ना, साइनस में कर दो। तो तुमने 3 मेजर आपस में जोड़े हैं, या 2 हैं तो 2 जोड़े हैं, दोनों को जोड़ के फिर सिंगल बड़ा सा चेंबर बना लो। अब कितने? तो अब आपका एक बन गया वाइडर। इसका नाम डाल दो रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस बाहर आके बनता है कि अंदर ही बन जाता है और बाहर मुंह निकालता है ऐसे? तो इसको हम पेल्विस कहते हैं। अब ऐसा नहीं बोलना कि इसको ब्रिगेडियर कहते हैं इसको। वो मेजर जो है ना, वो मेजर नहीं है, ये मेजर माइनर मेजर वाला है। तो ये क्या था? रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस का मकसद है कि रीनल पेल्विस निकला है, सीधा उसको वर्टिकल कर दो तो यूरेटर। वैसे भी रीनल पेल्विस इज द अपर वाइडर पार्ट ऑफ द यूरेटर। तो वो यूरेटर, अगर इसको रिटर्न करूं तो यूरेटर, रीनल पेल्विस, मेजर कैलेसिस, minor calyces, each one is receiving one renal papilla which is actually pointed terminal end of each pyramid. और each pyramid में क्या? ducts, और ducts में से कौन रिसीव हो रहा है? नेफ्रॉन। यही तो है। और एक नेफ्रॉन अगर पढ़ लो तो सारी किडनी पढ़ ली तुमने। and this is actually your functional and structural unit of the kidney. एक ही नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं, पूरी किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ जाना चाहिए। और ये किडनी इसी तरीके से यहां पर मौजूद होगी। और ये जो आप पैरामिड देख रहे हो, ये सारी चीजें। और इसके बाद क्या है? उसके बाद ये, अब ये जो डक्ट्स है ना, ये सिर्फ पैरामिड तक रुकी नहीं रहती, ये कार्टेक्स तक भी चली जाती हैं ऐसे। तो इसका मकसद ये होगा कि डक्ट का बड़ा हिस्सा मेडुलरी है बिकॉज इट इज इन द पैरामिड, और एक हिस्सा इसका
कार्टिकल भी है, और जो कार्टिकल यहां है तो इसका मकसद यह है कि कार्टिक्स में ऐसे बंचेस भी नजर आएंगे कि नहीं, इनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज हैं ये दरअसल क्या है, ये मेडुलरी रेज कहलाती हैं। और आप इस वक्त कहां हैं, कार्टेक्स में, समझ गए। और ये जो कार्टेक्स में मौजूद हैं इसके साथ ये आपकी डक्ट्स मौजूद हैं, और हर डक्ट क्या कर रही है, समझ लो कि रफली 100 नेफ्रॉन्स को रिसीव कर रही है।